Hello everyone, I am Ishit Shah from Dolphin Academy. This is the second part for the probability video. We are discussing here some examples related to it. So let us start with the first example. First one is a coin is tossed once. Find the probability of getting a hit. We already discussed some basic concept regarding to coin. Coin is tossed once, so we have to find first its sample space. We have to find its first sample space, and it is given by S. So that is, we already know that is 2 raised to n, because coin, अगर हम coin toss करें तो उसकी दो probability होगी, either head और tail. So बेस में आ जाएगा 2 और n is number of tossing, कितने बार toss कर रहा है, एक बार. So that is 2 raised to 1, that means 2. So it one time h, one time t. It will give either head or tail, either head or tail. Clear? So sample space हमारा बन गया. कभी भी एग्जाम्पल में पहले हमें क्या बनाना है, सिंपल स्पेस. क्लियर? Now we have to define one event E. Let E be the event of getting, क्या चाहिए हमें, getting a head. Getting a head. So E be the event of getting a head. So n of E कितना हो जाएगा, और E का सैंपल स्पेस चाहिए तो E कैसा हो जाएगा, n of E कितने हेड है, एक. So probability of E that is equals to number of outcomes favorable to E, number of outcomes favorable to E divided by total number of possible outcomes, or all number of possible outcomes of the experiment. So number of outcomes favorable to E, that is 1, and number of sample space, that is 2. So probability of event E, that is 1 by 2. Number of favorable outcome to E, that is an event of getting a head, so that is 1, and all number of possible outcomes of the experiment, that is 2. Clear? Next example. 2 coins are tossed once. Now 2 coins are tossed. So 2 raised to 2. So total 4 possibilities. जो हमने डिस्कस किया वैसा ही करना है. 2 raised to n. n की जगह पे क्या जाएगा, कॉइन है तो बेस में 2, और n की जगह पे जितनी बार टॉसिंग करे या जितने नंबर ऑफ कॉइन्स है वो आ जाएगा. सो ये 2 नंबर ऑफ कॉइन्स आर देयर. सो 2 raised to 2, that is 4. सो 4 आ गया. टोटल पॉसिबिलिटी 4 का हाफ कितना होता है, 2. सो 2 बार h, 2 बार t, 2 बार h, 2 बार t, टोटल 4 हो गए. भाई 2 का हाफ कितना होता है, 1. सो 1 बार h, 1 बार t, 1 बार h, 1 बार t. तो बन गया हमारा सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस क्या हो गया, एक h, फिर h t, t h एंड t t. क्लियर? नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हिट्स. फर्स्ट में क्या बोला है, तो लेट E be the event of getting 2 hits. E be the event of getting 2 hits. E इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 हेड की गेटिंग 2 हिट्स. एग्जैक्टली 2 हिट्स चाहिए, उससे ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, 2 हिट्स. सो एक ही है एच एच, तो ई का सैंपल स्पेस बन गया एच एच. ओके. नाउ इसमें कितने नंबर है, एन ऑफ एस, दैट इज 1 2 3 4. इसमें एन ऑफ ई कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट ई, दैट इज 1. Now we have to find probability of E, that is number of element in E divided by number of element in S. Or also we can write that formula, that number of outcomes favorable to E divided by all possible outcomes
of the experiment. Number of outcomes favorable to E. Number of outcomes favorable to E, that is n of E, that is 1, and all possible outcomes, that is sample space, that is 4. That is your answer for first question. Clear? Now second में क्या बोला है? At least one tail. At least means at least मिनिमम एक टेल हो चाहिए. At least means आपको मिनिमम एक टेल चाहिए. At least मिनिमम वन टेल. एक टेल हो गया, एक टेल, और ये दो टेल. इसमें दो चीज आती है, एक एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली वाला हमने फर्स्ट किया. एक आता है एट लिस्ट. एट लिस्ट मीन्स मिनिमम. एट लिस्ट वन टेल, एक तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा होगा तो चलेगा, दैट इज एट लिस्ट वन टेल. एट मोस्ट वाला हम बात में करते हैं. सो एट लिस्ट, तो लेट, इसमें एक इवेंट लेते हैं एफ, बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एट लिस्ट, कितने चाहिए? एट लिस्ट वन टेल. एट लिस्ट वन टेल. तो एफ का सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा? क्या चाहिए मुझे? एफ विद द इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन टेल. एट लीस्ट वन टेल मीन्स एच टी, टी एच एंड टी टी. एट लीस्ट वन टेल मीन्स मिनिमम एक टेल, एक से ज्यादा होगा तो चलेगा, बट एक से कम नहीं होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एट लिस्ट. ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एफ कितने हो गए? 1, 2 and 3. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दैट इज इक्वल्स टू एन ऑफ एफ. आपको पूरा लिखना है. नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एफ डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, दैट इज 3, एंड टोटल आउटकम्स दैट इज एन ऑफ एस, दैट इज 4. दैट इज योर आंसर 3/4. क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है इसमें? A coin is tossed 3 times. चलो 3 times means 2 raised to 3, correct? Total 8 possibilities are there. Okay. जैसे यहाँ पे क्या था? 2 raised to 2 4. 4 का हाफ क्या होता है? 2. So 2 बार हमने हेड लिखा, 2 बार हमने टेल लिखा. 4 का हाफ क्या? 2 2. Similarly here we have to divide 8 by 2. So that is 4. So you have to write 4 times h. 1 2 3 4. 4 टाइम्स एच लिखा बिकॉज 8 का हाफ होता है 4, और 4 टाइम्स हमें क्या लिखना है? 4 टाइम्स टेल. अभी 4 का हाफ क्या होता है? 2. सो 2 बार एच, 2 बार टेल, 2 बार एच, 2 बार टेल, एंड 2 का हाफ 1. सो एच टी हो गया. तो हमारा सैंपल स्पेस बन गया एच 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 टी एच टी एच. समझ में आ रहा है? एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी. क्लियर? टोटल 8 एलिमेंट्स हो गए. सो एन ऑफ एस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस एस, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 एलिमेंट्स आर देयर. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड्स. तो हम एक इवेंट लेते हैं, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड्स. एट लीस्ट 2 हेड्स, तो ई का सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा. वो क्या बन जाएगा? एट लीस्ट 2 हेड्स. एट लीस्ट मीन्स 2 से ज़्यादा चलेगा. ठीक है, तो एच 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 आ जाएगा. यस, एच एच टी, एट लीस्ट 2 तो चाहिए ही चाहिए. एच टी एच, एक नहीं चलेगा, इसमें 2 आ रहा है. ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं. क्लियर? सो एन ऑफ ई कितने हो गए? 3 4. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दैट इज एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस. एन ऑफ ई कितने हैं? 4. एन ऑफ एस 8. सो आंसर इज 1/2. तो फर्स्ट का आंसर हो गया. क्लियर? अभी सेकंड देखते हैं क्या बोला है. गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स. कितने चाहिए? एग्जैक्टली 2 हेड्स. तो हम एक और इवेंट लेते हैं. ये इवन हो गया, चलो इसको इवन बोलते हैं हम. सो एक इवेंट E2 हो गया, जिसमें क्या चाहिए मुझे? एग्जैक्टली 2
हेड्स, तो इसका सैम्पल स्पेस क्या बन जाएगा, एग्जैक्टली 2 हेड्स, 2 से ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, सो एच एच टी, सैम्पल स्पेस से ही आपको फाइंड करना है, एच टी एच, टी एच एच, कोई रह नहीं किया ना भाई, एच एच टी एच एंड टी एच एच, सब 2 हेड्स वाले आ गए। ओके, सो ये हो गया एन ऑफ E2, कितने एलिमेंट है 3, और एन ऑफ एस हमारे पास कितना है 8, सो P ऑफ E2 दैट इज एन ऑफ E2 अपॉन एन ऑफ एस दैट इज 3/8, तो हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट थर्ड, गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड, ये समझना अच्छे से, एट मोस्ट मीन्स मैक्सिमम 1 हेड चाहिए, मैक्सिमम 1, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम होगा तो चलेगा। तो इसका सैंपल स्पेस मैक्सिमम 1 हेड, 2 नहीं चलेगा, 2 नहीं, 1 चलेगा, 2 नहीं, सॉरी ये नहीं, इसमें से, सॉरी यहाँ एस में से देखना है सैंपल स्पेस, मैक्सिमम 1 ही हेड चाहिए, 3 नहीं, 2 नहीं, 2 नहीं चलेगा, 1 है हाँ चलेगा, एट मोस्ट 1 है, सो एच टी टी, टी एच एच नहीं, टी एच टी ओके, टी टी एच नहीं होगा तो भी चलेगा, सो टी टी टी, ये हो गया आपका एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड। एन ऑफ E3 कितना हो गया 1 2 3 4, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना हो गया 4 डिवाइड बाई 8 1/2, 8 कहाँ से आया टोटल, क्लियर। फोर्थ, गेटिंग मोर हेड्स देन टेल्स, फोर्थ E4, उसका सैंपल स्पेस डायरेक्टली बना रहा हूँ, गेटिंग मोर हेड्स देन टेल, हेड ज़्यादा होना चाहिए टेल से, एच 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 3 हेड 0 टेल, करेक्ट। ओके, सो एच एच एच, फिर एच एच टी, फिर एच टी एच, बिकॉज हेड ज़्यादा चाहिए, एच टी टी नहीं आएगा, टी एच एच, ये 2 टेल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जो हेड ज़्यादा चाहिए, कितने हो गए 1 2 3 4, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 दैट इज अगेन 4/8 दैट इज 1/2, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये खास वर्ड समझना आपको, एग्जैक्टली, एट लीस्ट, एट मोस्ट एंड गेटिंग मोर हेड्स देन टेल, ये कंसेप्ट याद रखना है आपको, कहीं भी ये पूछ सकते हैं, एट लीस्ट इतना चाहिए, एट मोस्ट इतना चाहिए, एट लीस्ट मीन्स मिनिमम उतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा, एट मोस्ट मीन्स मैक्सिमम उतना ही चाहिए, उससे कम होगा तो चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा, क्लियर। ये सब कंसेप्ट पता चल जाएगा तो कोई भी सम आप कर सकते हो, XYZ, कोई एक्स्ट्रा सम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। फोर्थ, a die has 6 phases marked as 1 2 3 -1 -2 -3, 6 फेस है, हर एक पे ऊपर कुछ नंबर रिप्रेजेंट किया हुआ है। A die is thrown once, एक बार हमने डाई फेंका, ओके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या चाहिए मुझे, फर्स्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, तो एक इवेंट लेते, इवन अ पॉजिटिव इंटीजर, तो उसका सैंपल स्पेस बनाएंगे हम, पॉजिटिव इंटीजर कितने हैं 1 2 3, सो 1 2 3, सो एन ऑफ E1 कितना हो गया 3 हो गया, सैंपल स्पेस तो आपको पता ही है, सैंपल स्पेस क्या बनेगा 1 2 3 -1 -2 -3, एन ऑफ एस कितना हो गया 6, क्लियर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल्स टू एन ऑफ E1 डिवाइड बाई एन ऑफ एस, एन ऑफ E1 कितना है 3, एन ऑफ एस 6, दैट इज 1/2, क्लियर। आपको पूरा इक्वेशन लिखना है यहाँ पे, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स टू द एक्सपेरिमेंट, ऐसा पूरा लिखना है, क्लियर। सेकेंड, एन इंटीजर ग्रेटर देन -2, ओके, इंटीजर greater than -2,
तो एक ऐसा बन जाएगा E2 का सैम्पल स्पेस -2 से बड़ा कौन सा है? -3 नहीं, -3 इज लेस देन -2, सो -2 से बड़ा कौन सा हुआ? इस साइड सारे -2 से बड़े हो गए, 1 2 3 एंड -1. These values are greater than -2, so probability n of E2 कितना हो गया? 1 2 3 4. Probability of E2, that is n of E2 divided by n of S, it is 4/6, that is 2/3. Clear? Third, the smallest integer. The smallest integer. So smallest integer इसमें से कौन सा होता है? Obviously -3. So E3, that is smallest integer. So E3 का सैम्पल स्पेस बनेगा हमारा -3, एक ही एलिमेंट आएगा. So number of element of E3, that is 1. So probability of E3, that is n of E3 divided by n of S. n of E3 कितना है? 1. n of S कितना है? n of S 6. So answer is 1/6. That is smallest integer P of E3. Probability of smallest integer, that is 1/6. Clear? Next. A card marked with a numbers 1 2 3 up to 20. एक कार्ड्स है मेरे पास, n नंबर ऑफ कार्ड्स, उसमें 1 to 20 मार्क किया हुआ है. आर वेल शफल्ड एंड अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम. एक कार्ड मैंने किसी भी अंदर से रैंडमली पिक किया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज फर्स्ट. पहले तो मेरा सैम्पल स्पेस बनाना पड़ेगा. सैम्पल स्पेस क्या हो गया? करेक्ट, 1 2 3 अप टू 20. सो n ऑफ s कितना हो गया? 20. पहले सैम्पल स्पेस बन गया. ओके, नाउ क्या चाहिए? फर्स्ट अ प्राइम नंबर. तो एक इवेंट में लेता हूँ E1, अ प्राइम नंबर. E1 का क्या बनेगा? सेट. प्राइम नंबर स्टार्ट होगा 2 3 5. 1 नहीं आएगा, इसमें ध्यान रखना है. 7 13 9. क्लियर? सो n ऑफ E1 कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 हो गया. सो P ऑफ E1, probability of getting prime number, that is n of E1 divided by n of S. कोई भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आपको जो इवेंट बोला है उसका पॉसिबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, बस वही करना है. तो पॉसिबल आउटकम कितने हो गए यहाँ पे? n ऑफ E1 कितना है? 8. और टोटल आउटकम कितना है? 20. 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, सो 2/5. दैट इज योर आंसर. क्लियर? सेकेंड, अ नंबर डिविजिबल बाय 3. E2, दैट इज डिविजिबल बाय 3. तो उसका सेट बनेगा डिविजिबल बाय 3 मीन्स 3 2 ज़ा 6 9 12 15 18. क्लियर? दैट इज डिविजिबल बाय 3. सो n ऑफ E2 कितना हो गया? 6. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा? n ऑफ E2 दैट डिवाइडेड बाय n ऑफ S, दैट इज 6 डिवाइडेड बाय n ऑफ S कितना है? 20. 2 3 ज़ा 6 2 10, दैट इज 3/10, 0.3. or you can also write 3/10. okay. Third, a perfect square number. क्या है? a perfect square number. तो ये क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होंगे? किस में से फाइंड करना है हमें? सैम्पल स्पेस. सैम्पल स्पेस क्या है मेरा? 1 to 20. उसमें से परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1
then 4 9 16, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया. n of e2 e3 1 2 3 4, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मीन्स 1 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25. So that is not in the sample space. You have to consider up to 16. So n of e3 that is 4. So probability of e3, that is n of e3 divided by n of s, that is 4 by n of s, that is 20. 1 by 5. Clear? 1 by 5 0.2. You can also write here 0.2 or 1 by 5. Clear? Next, a box contains some black balls. This one is good sum. The box contains some black balls and 30 white balls. Okay. तो हम कंसिडर कर रहे हैं टेक नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज इक्वल्स टू x and given that number of white balls is equals to 30 and 30 white balls. Okay, so total number of balls कितने हो गए? टोटल बॉल्स ब्लैक x और वाइट कितने 30, तो टोटल बॉल्स होंगे x प्लस 30. तो इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ that is black ball and that is for white ball. Probability of drawing a black ball is 2/5 of that of drawing a white ball, of that of drawing a white ball. So probability of black ball is 2/5 the probability of white ball. Probability of black ball कितना होगा? Number of black balls, that is x divided by total number of ball, x plus 30 into is equals to 2 by 5 into number of probability of white ball is number of white ball, that is 30 divided by total number of balls, that is x plus 30. Clear? इसको सॉल्व करते हैं. 6 2 जा 12 अपॉन x प्लस 30, x प्लस 30 कैंसिल हो जाएगा. सो x इज इक्वल्स टू 12. तो मुझे क्या मिला? x ब्लैक बॉल. सो द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल दैट इज इक्वल्स टू 12. क्लियर? सो दैट इज अ फाइनल आंसर. बिकॉज यहाँ पे फाइंड क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन द बॉक्स. तो कितने बॉल हो गए? 12. क्लियर? नेक्स्ट, अभी डाइज वाला एग्जाम्पल्स. 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली. 2 डाई हमने थ्रो किया. ओके, तो उसको पहला 6 and 6 36 पॉसिबिलिटीज़ बनेगी. पहले वो 36 पॉसिबिलिटी हमें बनानी पड़ेगी यहाँ पर. तो उसका सैम्पल स्पेस बनाता है पहले. वो हो जाएगा 1 1. ये मैंने बनाना सिखाया आपको लास्ट लेक्चर में. आपको पूरा बनाना है. थ्री 4, पेन को क्या हो जाता है यार? 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6. Similarly 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. बन गया सैम्पल स्पेस. ओके, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 एज द सम ऑफ 2 नंबर्स दैट टर्न अप. सम क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए. 9 सम कब होगा? इसमें कहीं 9 पॉसिबल है? 6 + 1 7 मैक्सिमम. 9 नहीं पॉसिबल है.
6 + 2 8 होगा, 9 नहीं होगा, 6 + 3 9 होगा, तो एक हो गया ये 6 3। चलो यहाँ पे लिखते हैं even getting 9 as sum, उसका सैम्पल स्पेस बनाता है, एक हो जाएगा 3 6, फिर इसमें आएगा 4 5, फिर 5 4 सरस, फिर 6 3। तो n ऑफ इवन कितना हो गया 4, और n ऑफ s कितना है टोटल 36। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना हो गया 4/36, 1/9। क्लियर, समझ में आ गया। सेकेंड, गेटिंग अ डबलेट। डबलेट मीन्स दो नंबर सेम 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो डबलेट उसका कितना बनेगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। कितना हो गया 3 3 6। n of E2 is equal to 6. So probability of E2 is equal to 6/36, that is 1/6. Clear? समझ में आ गया? क्लियर। थर्ड, गेटिंग सम ऑफ टू नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 12। ओके, चलो सोचो इसमें क्या करोगे। यहाँ पे आपको वीडियो पॉज करना है, सोचना है आप इसमें क्या करोगे। गेटिंग द सम ऑफ टू नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 12। मुझे सम क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 12। सम 12 होगा 12 होगा तो भी चलेगा, और उससे कम भी चलेगा। सो 1 + 1 2 भी चलेगा, 1 + 6 7, 5 + 6 11, 6 + 5 11, सारे सम्स चलेंगे बिकॉज लेस देन और इक्वल टू 12 चाहिए। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कौन सी हो जाएगी, सारी हो जाएगी 36/36। सो E3 में पूरा सैम्पल स्पेस आ जाएगा S। सो n ऑफ E3 दैट इज 36। यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको पूरा। सो P ऑफ E3 दैट इज 36/36 दैट इज 1। क्लियर। सो उसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1। अगर यहाँ पे बोला है आपको गेटिंग द सम ऑफ टू नंबर्स इज ग्रेटर देन 12, सो ग्रेटर देन 12 पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे बोला है आपको सम ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, तो उसमें क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12। 12 से बड़ा पॉसिबल है सम, 6 + 6 12 नहीं, इक्वल टू 12 पॉसिबल है, हाँ एक 6 + 6, तो उसमें आएगा 1/36। क्लियर। ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए तो ही होगा। नेक्स्ट, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल कितना है 5, 7 ब्लू बॉल, वाइट बॉल 4 एंड रेड बॉल 6। टोटल कितने हो गए, 6 + 4 10, 10 + 7 17 + 5 22। क्लियर, ओके। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन इज रेड। पहली एक इवेंट हो गई गेटिंग रेड बॉल। तो n ऑफ इवन कितना हो जाएगा, रेड बॉल कितना है 6, ये हो गया आपका n ऑफ s। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दैट इज n ऑफ E1 डिवाइड बाय n ऑफ s दैट इज 6/22। 2 3 6, 2 11 3/11। क्लियर, ओके। सेकेंड, इवेंट E2 ब्लैक और वाइट। n ऑफ E2 हम डायरेक्टली लिखते हैं ब्लैक और वाइट। ब्लैक कितना है 5, और मीन्स प्लस। जब भी आप ऐसा लिखो प्रोबेबिलिटी में और, तो आपको प्लस करना है, और अगर यहाँ पे एंड लिखा हुआ दिखे अब तो आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। पर वो आप में नहीं आएगा अभी हम और का देखते हैं। और मीन्स क्या करना है, हमें प्लस करना है। ब्लैक 5 और वाइट कितने 5 + 4 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दैट इज 9/22। क्लियर,
थर्ड क्या है, नॉट ब्लू, E3, ब्लू के अलावा कितने हैं, 6 + 4 10 + 5 15, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 दैट इज 15/22। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, पहले आप और कैसे कर सकते हो आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्या पूछा है, नॉट ब्लू, तो हम लेते हैं एक E3 इवेंट गेटिंग अ ब्लू बॉल। पहले मैं ब्लू बॉल फाइंड कर लेता हूँ, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ब्लू बॉल कितने हैं इसमें से 7, तो 7 डिवाइड बाई टोटल 22, तो मेरा ब्लू बॉल की मिल गई। ओके, नाउ हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इक्वल्स टू 1, पढ़ा था ऐसा। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है, नॉट E फाइंड करना है, नॉट ब्लू बॉल, तो 1 माइनस P ऑफ E हो जाएगा, P ऑफ E3 ब्लू बॉल, सो 1 माइनस 7/22, 22 का एलसीएम 22 माइनस 7/22, 22 माइनस 7 दैट इज 15/22। आ गया सेम आंसर, समझ में आ रहा है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो आप ऐसे, क्लियर। ओके, फोर्थ, नाइदर ब्लैक नॉर ब्लू, ब्लैक भी नहीं चाहिए ब्लू भी नहीं चाहिए, ब्लैक और ब्लू निकाल दो, चलो भाई ब्लैक और ब्लू निकल गया, बाकी कितना रहा, रेड वाइट 6 + 4 10, N ऑफ E4 10, P ऑफ E4 10 डिवाइड बाई 22, 2 5 are 2 11, 5 डिवाइड बाई 11, क्लियर, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट, 2 प्लेयर्स, ये थोड़ा अच्छा समय ध्यान रखना, 2 players Sangeeta and Reshma play a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. एक इवेंट लेते हैं हम E1 जिसमें संगीता विनिंग द मैच, उसका प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है 0.62, बराबर। ओके, अभी क्या फाइंड करना बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच। अभी समझना है इसमें कंसेप्ट, यही कंसेप्ट यूज होगा, कौन सा वाला, ये E प्लस नॉट E वाला, ध्यान रखना। 2 प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा खेल रहे हैं, E2 में ले रहा हूं, रेशमा विनिंग द मैच, बराबर। संगीता मैच विन कर रही है, उसका प्रोबेबिलिटी हो गया P ऑफ E1, रेशमा मैच विन कर रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी हो गया E2 जो हमें फाइंड करना है, क्लियर। ओके, सो दोनों की प्रोबेबिलिटी का एडिशन, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ P ऑफ संगीता विनिंग द मैच प्लस P ऑफ संगीता नॉट विनिंग द मैच, P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E क्या होता है 1, संगीता मैच जीत रही है उसकी प्रोबेबिलिटी, प्लस संगीता मैच नहीं जीत रही है, संगीता नॉट विनिंग द मैच। अगर संगीता मैच नहीं जीत रही है तो कौन जीतेगा, तो वो रेशमा, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, P ऑफ रेशमा विनिंग द मैच, ऐसा लिख सकते हैं। संगीता नहीं जीत रही, दैट मीन्स रेशमा जीतेगी, P ऑफ, ये तो एज इट इज आ गया, संगीता विनिंग द मैच इज इक्वल्स टू क्या है 1, सो P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 इक्वल्स टू 1, सो P ऑफ E2 इक्वल्स टू 1 माइनस P ऑफ E1, 1 माइनस P ऑफ E1 कितना है 0.62, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 0.38, वेरीफाई कर लो, 60 70 30 100, ओके क्लियर, दैट इज रेशमा विल विन द मैच, क्लियर। नेक्स्ट, सविता एंड हमीदा आर
two friends. What is the probability that both will have different birthday? अगर दो फ्रेंड है तो उसका इग्नोरिंग द लीप ईयर हमें कंसिडर नहीं करना है, तो टोटल डेज कितने हो गए? टोटल डेज 365. ओके, चलो अभी दो फ्रेंड है, दोनों की बर्थडे एक ही दिन पे आ रही है, वैसे फाइंड करते हैं. एक इवेंट ई लेते हैं, सविता एंड हमीदा हैविंग द सेम बर्थडे. ऐसी कोई इवेंट ई ले ली जिसका दोनों पे एक ही दिन पे बर्थडे आ रहा है. एक ही दिन पे मीन्स अगर 1 जनवरी पे आ रहा है तो दोनों का 1 जनवरी होगा. 24 जुलाई है तो दोनों का 24 जुलाई होगा. 24 अप्रैल है तो 24 अप्रैल होगा. समझ में आ रहा है? मीन्स एक ही दिन पे आ रहा है, मीन्स उसका ऐसा चांस कितने हो गए? कोई भी एक ही दिन हुआ. सो एन ऑफ ई कितने हो गए? एक हो गया. एन ऑफ ई एक ही होगा क्योंकि एक ही दिन पे सेम बर्थडे पॉसिबल है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई टोटल कितना है? 365. समझ में आ रहा है? जिसका एक ही दिन पे बर्थडे आ रहा है वैसा कितना होगा? 1/365. ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है? डिफरेंट बर्थडे हमें फाइंड करना है, नॉट ई. समझ में आ रहा है? सविता एंड हमीदा हैव द डिफरेंट बर्थडे. सेम बर्थडे का हमने फाइंड किया, हमें फाइंड करना है डिफरेंट बर्थडे का. दैट मीन्स नॉट ई. सो पी ऑफ नॉट ई क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी ऑफ ई. क्लियर? 1 माइनस 1/365. पी ऑफ ई 1/365 है, तो एलसीएम होगा 365 माइनस 1/365, दैट इज 364/365. सो दैट इज योर आंसर. क्लियर? So Savita and Hamida having this different birthday, that is 364/365, and having the same birthday, that is 1/365. Clear? तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए. P of E प्लस P of not E equals to 1. जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक आप ये सारे कंसेप्ट सब में यूज नहीं कर पाओगे. नेक्स्ट, A cartoon consists of 100 shirts. ये भी अच्छा सम है एक. Of which 88 are good. So good कितने हैं? 88. 8 have minor defects. Minor defects वाले कितने हैं? 8. और 4 have major defects. तो major defect वाले कितने हैं? 4. टोटल हो गए 100. टोटल शर्ट्स कितने हो गए? 100. ओके. Now Jimmy, a trader will only accept, वो accept कर रहा है. Jimmy एक trader है, will only accept the shirts which are good. Okay, तो एक event E1 लेते हैं जिसमें Jimmy will accept the good shirts. जिमी क्या कर रहा है? ओनली गुड शर्ट्स जो है वही एक्सेप्ट कर रहा है. ओके, बट सुजाता अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्ट. फिर सुजाता क्या कर रही है? विल रिजेक्ट द शर्ट्स विथ विच हैव मेजर डिफेक्ट्स ओनली. विथ मेजर डिफेक्ट्स मीन्स समझो यहाँ पर दो ट्रेडर है. एक जिमी जो बाजार में गया, टोटल 100 शर्ट्स है, उसमें से कुछ अच्छे वाले 88 है, कुछ माइनर सी डिफेक्ट है वो 8 शर्ट है, और मेजर डिफेक्ट वाले 4 शर्ट है. ठीक है, जिमी ने देखा जो अच्छे वाले शर्ट है वही सिर्फ एक्सेप्ट कर रहा है. वो मीन्स 88 में से वो कुछ सिलेक्ट करके लेके आ रहा है. जब सुजाता जा रही है मार्केट में तब वो क्या कर रही है? विल रिजेक्ट द शर्ट्स विथ मेजर डिफेक्ट्स. मीन्स जो मेजर डिफेक्ट वाले शर्ट्स है वही रिजेक्ट कर रही है. 88 और 8 इसमें से वो शर्ट सिलेक्ट करेगी. समझ में आ रहा है? मीन्स जिमी किसमें से शर्ट सिलेक्ट करेगा? सिर्फ 88 में से गुड वन. बट सुजाता दैट सिलेक्ट फ्रॉम 88 एंड ऑल्सो माइनर डिफेक्ट्स दैट इज 8. समझ में आ रहा है? तो कभी पूछा क्या इसमें?
what is the probability that it is acceptable to Jimmy? Okay, P of E1 acceptable to Jimmy. accept कितने कर रहा है वो? गुड शर्ट्स. गुड शर्ट कितने? 88. acceptable to Jimmy, that is 88 डिवाइड बाय टोटल कितने है? 100. तो 0.88. सिंपल, समझ में आ रहा है? अभी सेकंड वन समझो. इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता. सुजाता क्या एक्सेप्ट कर रही है? सॉरी, सुजाता क्या रिजेक्ट? इसमें बोला है सुजाता रिजेक्ट कर रही है. सुजाता रिजेक्ट द शर्ट्स विथ मेजर डिफेक्ट. मेजर डिफेक्ट वाले सुजाता शर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी. तो एक्सेप्ट कौन से करेगी? E2 क्या हो जाएगा? सुजाता विल एक्सेप्ट द शर्ट्स विथ माइनर डिफेक्ट्स एंड गुड वन. तो वो कितने हो गए? 88 प्लस 8. समझ में आ रहा है? दैट इज 96. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, दैट इज सुजाता, इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता. एक्सेप्टेबल टू सुजाता मीन सुजाता किसमें से सिलेक्ट कर रही है? टोटल 96 में से 4 निकाल दिए. सो 96 डिवाइड बाई 100, दैट इज 0.96. क्लियर? और आप इसको वैसे भी कर सकते हो. P of E प्लस P of नॉट इक्वल टू 1. तो भी मैं समझाता हूँ आपको यहाँ पे कैसे करना है शॉर्ट में. सुजाता विल रिजेक्ट द शर्ट्स विथ मेजर डिफेक्ट. ठीक है, तो मेजर डिफेक्ट वाले कितने हैं? 4. तो मेजर डिफेक्ट वाले उसने रिजेक्ट कर दिए, दैट इज 4/100. क्लियर? 0.04. तो वो एक्सेप्ट करेगी नॉट E2 मीन्स मेजर डिफेक्ट वाले उसने रिजेक्ट कर दिए. तो एक्सेप्ट कौन सा करेगी? गुड और माइनर डिफेक्ट वाले. तो वो हो गया 1 माइनस 4/100, दैट इज 96/100. 100 एलसीएम लो. 100 माइनस 4/100, 96/100, दैट इज 0.96. क्लियर? 0.96. दोनों में आंसर सेम ही आएगा, आप कैसे भी करो. क्लियर? आपको वीडियो अच्छे से 3-4 बार देखना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा. नेक्स्ट, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स. टोटल 52 कार्ड्स है. कार्ड्स वाला एग्जांपल आके उसमें सब कवर हो जाएगा, ध्यान रखना. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द कार्ड विल बी एन एस. पहले तो कार्ड का समझ लेते हैं फिर से. 52 कार्ड्स है, उसमें से कलर्स होते, एक रेड कलर और एक ब्लैक कलर. बराबर? रेड कलर के कितने कार्ड्स होते हैं? उसमें 2 कलर, 2 शेप्स आते हैं, एक हार्ट शेप और एक डायमंड. ब्लैक में आता है एक स्पेड और एक आता है क्लब. बराबर? हर एक के कितने कार्ड्स होते हैं? 13. तो रेड कलर के कार्ड्स कितने हो गए? 26. ब्लैक कलर के कार्ड्स कितने हो गए? 26. बराबर? ओके, इतना समझ में आ गया. अभी क्या फाइंड करना है? बी एंड एस. एस मीन्स एक का कितने होते हैं? 1 2 3 4, हर एक में एक होता है. सो फर्स्ट P of E1, P of B and S, that is 4/52, that is 1/13. Second, P of not B and S. एक का नहीं चाहिए तो उसको क्या करना है? 1 माइनस P of B and S कर देंगे हम. P of E plus P of not E equal to 1. So P of not E equals to 1 minus P of E, that is 1 minus 1/13. 13 minus 1/13, that is 12/13. क्लियर? समझ में आ गया? थर्ड, किंग ऑफ रेड कलर. हाँ, जो रेड कलर बोला है, रेड कलर के कार्ड्स होते हैं 26. और रेड कलर के किंग कितने होते हैं? एक हार्ट में और डायमंड में. टोटल 2 कार्ड्स होते हैं. सो पी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर. सो कितने होंगे किंग? 2. टोटल कार्ड कितने हैं रेड कलर के? 26. 2/26, 1/13. क्लियर? नेक्स्ट, अ स्पेड. पी ऑफ स्पेड. स्पेड के कार्ड कितने होते हैं? 13. 13/20, सॉरी 13/20.
टोटल होते हैं 52 कार्ड्स. 13/52 that is 1/4 spade. Clear? Next, फिफ्थ, a red face card. फेस कार्ड. अभी फेस कार्ड कितने होते हैं? किंग, क्वीन एंड जैक. किंग कितने होते हैं? 4, क्वीन 4, जैक 4, टोटल 12 कार्ड्स होते हैं फेस कार्ड. अभी यहाँ पे क्या बोला है? रेड फेस कार्ड. रेड फेस कार्ड मीन्स इसके फेस कार्ड, इसमें किंग क्वीन जैक 3 हो गए, इसमें किंग क्वीन जैक 3, 3 + 3 6. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड दैट इज टोटल 6 डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52. 6/52. क्लियर? 2 3 clear. So that is 3/26. Clear? So kindly do these examples properly. इसको आप याद मत रखना, समझ के अच्छे से करना. एक बार देख के सारे एग्जाम्पल्स कर लो, फिर सारे क्वेश्चन लिख के खुद से एक बार ट्राई करो, और थोड़ा टाइम जाने देने के बाद और एक बार ट्राई करो. मीन्स टोटल आपको 3 बार ट्राई करना है, तो सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और अच्छे से आपको आ भी जाएगा. क्लियर? थैंक यू गाइज. कीप लाइकिंग माई वीडियोज एंड काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू.